और बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि हमारा AI लैब जो है वो लॉन्च हो रहा है हमारे स्कूल में। 3D प्रिंटर है और ये आर्किटेक्ट्स को बहुत मदद करता है क्योंकि ये उनको पहले ही विजुलाइज करने में हेल्प करता है। वो अपने प्रोजेक्ट्स पहले ही बना लेते हैं इससे और वो देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगे। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर। आजकल की गाड़ियां देखो जो आ रही हैं उनमें इंफ्रारेड सेंसर्स गाड़ी के बाहर वाले हर अंग पे होते हैं। वो सेंसर चीज सेंस कर सकता है, वो गाड़ी को पहले ही इनपुट दे देगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। तो लोगों की जान बचाने से ज्यादा जरूरी तो कुछ हो नहीं सकता। जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। AI जो है दुनिया में अब हर जगह है, इसके बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस दुनिया की। Drones are the best and most efficient way of smart farming, disaster management, medical aid and security. Even the prestigious Indian Premier League IPL is using drones to live broadcast their matches to the whole world. In our real life, we've been learning about various technologies, and one of the example is my project, which is a touch sensor display. Whenever I touch the first touch sensor, my sprite it starts moving. When I touch the second sensor, the LED lights on my walkie board they change their colors. अब स्कूल बच्चे भी सीखेंगे AI टेक्निक के फायदे। देश में AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से स्कूल के बच्चे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को सीख रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट्स को AI की बारीकियां समझाकर इसके फायदे बताए जा रहे हैं। उसी के तहत आज अमृतसर मजीठा रोड मिलेनियम स्कूल में AI लैब की शुरुआत की गई। इस मौके बच्चों की तरफ से अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाए गए और उनके बारे में जानकारी दी गई और कहा कि AI टेक्नोलॉजी का हमें बहुत सहायक है और हम किसी मोबाइल फ़ोन एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियों में भी AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। मिलेनियम स्कूल की मुख्य अध्यापक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि AI जो है वह दुनिया में हर जगह है और इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते और बच्चों को सिखाना ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक भविष्य है हमारी एजुकेशन का और NEP के साथ अलायंस है। हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि जो हमारे यूथ हैं वो AI टेक्नोलॉजी को लीड करेंगे और मिलेनियम अमृतसर का पहला ऐसा स्कूल है जिसने AI लैब की आज स्कूल में शुरुआत की है। I am Avyam Kapoor from grade 10 from the Millennium School Amritsar, and today we are going to learn about advanced technologies for controlling electric circuits, and one of the technologies Electrakit, which has many projects, hand sensor, LED, matrix, and here I have created LED and matrix. So this technology is used in real life applications. Also we can use it in solar energy and power management. This helps the students to understand about AI coding, circuits also. Thank you. Good morning everyone. I am Nitya Wadhwa of grade 10 from the Millennium School Amritsar. In our real life, we've been learning about various technologies, and one of the example is my project, which is a touch sensor display. Whenever I touch the first touch sensor, my sprite it starts moving. When I touch the second sensor, the LED lights on my walkie board they change their colors. Whenever I touch the third sensor, my sprite it starts dancing, and whenever I touch the fourth touch sensor, my sprite it stops. This touch sensor has various use in the real life applications. They are used in smartphones, in smart homes, in ATM machines, and even in metro stations. I am really proud to be part of the Millennium School Amritsar that fosters innovation and also promotes the children to work for the future of AI. Thank you. Namaste everyone, I am Samika Mehra. I study in grade 10 at the Millennium School Amritsar. We've been learning about such advanced technologies and their applications. So today with me I have one of the examples, the ultrasonic sensor, also known as the obstacle detector. It detects obstacles around its way and moves the other way possible. So here are some other applications seen. It is used in the Tesla's ADAS system and healthcare industries. We can also see it in some other robotic toys
and we are blessed to be born in this generation where technology is accessible at a young age. Thank you so much. Good morning everyone, I am Ananya Agarwal of grade 10 from The Millennium School Amritsar. Here I am showcasing this AI and Bluetooth powered soccer robot, and thanks to a highly equipped and advanced AI lab I have been able to create such an advanced model and program the Bluetooth powered application through which I can control the model. It has various features such as I can move it forward, and I can also release and then grip the ball. It can also move left and it can also move backward. Thank you. मैं दिव्यांशी वोहरा हूँ। मैं द मिलेनियम स्कूल अमृतसर में पढ़ती हूँ और मेरा प्रोजेक्ट आज 3D प्रिंटर है और ये आर्किटेक्ट्स को बहुत मदद करता है क्योंकि ये उनको पहले ही विजुलाइज करने में हेल्प करता है। वो अपने प्रोजेक्ट्स पहले ही बना लेते हैं इससे और वो देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगे। तो कितना समय लगा, क्या क्या वर्किंग में आया इसमें? कितना समय लगा, कितना सामान लगी इसको? हमने इसकी एप्लीकेशन सीखी थी कि ये बना सकता है प्रिंटर। जो आर्किटेक्ट्स अपने मॉडल्स बनाते हैं वो हमें इसमें दिख सकते हैं पहले कि वो कैसे बनाते हैं। कितना समय लगा, टाइम कितना को बनाने में? हमें इसको काफ़ी समय लगा। हमने इससे 2-3 महीने इस पे थोड़ा वर्क किया और इसको समझा। तो कितना साथ देखने मिला, कितना हेल्पफुल हुआ ये मेरे को लगता है काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि ये फ्यूचर है। AI is the future and I think this is going to be very helpful for the architectures and also for the food and art industry. Good morning everyone, this is Siddharth Sareen from grade 10 studying at the Millennium School Amritsar. Drones are the best and most efficient way of smart farming, disaster management, medical aid and security. Even the prestigious Indian Premier League IPL is using drones to live broadcast their matches to the whole world. In our school, we are learning about this latest kind of technology, and to cap all, this is the future of artificial intelligence. क्या कहना चाहते हो, क्या किया आप? मैं अनन्या अग्रवाल हूँ और मैं 10th क्लास से हूँ और द मिलेनियम स्कूल अमृतसर में पढ़ती हूँ। मैंने बनाया है एक AI बेस्ड एंड ब्लूटूथ बेस्ड सॉकर रोबोट। उसमें वो रोबोट मैं अपनी AI लैब में क्रिएट किया है जिससे वो बॉल जो होती है वो उसको आगे पीछे कर सकता है, वो उसको पकड़ के इधर उधर कर सकता है। ये सिर्फ एक टॉय नहीं, ये हमारी थिंकिंग स्किल्स को भी बढ़ाता है और इससे सिर्फ टॉय नहीं, ये जैसे मेडिकल सर्जरीज में भी ऐसे टूल्स काम आते हैं। आज के यूथ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ में हम AI यूज़ करते हैं। हम पढ़ाई से लेके काम तक हर चीज़ में AI यूज़ करते हैं। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इसको ये कैसे काम करता है, ये कैसे चलता है, ये सब समझने में कुछ टाइम लगा, बट हाँ ये हमारी ज़िंदगी को भी आसान बनाता है। नमस्ते सबको, मैं अगस्त्य खन्ना हूँ। 10वीं ग्रेड में मिलेनियम स्कूल में पढ़ता हूँ मैं, और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर। तो उसके अंदर इंफ्रारेड एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें सुनाई दिखाई कुछ नहीं देती, पर उस सेंसर से अगर कुछ उसके सामने आए तो उसे पता लग जाता है और फिर वो एक इनपुट देता है LED लाइट को जो जगती है। और ये तो एक बहुत आसान वेरिएशन है। इसकी असली में कहीं सारी जगह एप्लीकेशन है। इसको हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे, ऑटोमेटिक नलकों में ये इस्तेमाल होता है। और इसको बनाना हमारे AI के अध्यापिका ने बहुत आसान कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें पहले इसे इस्तेमाल करना सिखाया और फिर हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी। आने वाले समय में कितनी ज़रूरत है इसकी बहुत ज़रूरत है और आप देख सकते हो कि आज भी इसको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप आजकल की गाड़ियां देखो जो आ रही हैं, उनमें इंफ्रारेड सेंसर्स गाड़ी के बाहर वाले हर अंग पे होते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई एक्सीडेंट या कुछ होए तो ये उसे रोक सकता है। तो जो सेंसर चीज़ सेंस कर सकता है वो
गाड़ी को पहले ही इनपुट दे देगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। तो लोगों की जान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कितना समय लगा आपको इस चीज़ को वर्किंग करने? इसको सीखने के लिए हमें पहले 1 महीना हमने सारे तारें, सारे पोर्ट्स के फंक्शन समझे, और असेंबल करने में तो हमें लगभग 2.5-3 घंटे लगे। नमस्ते, मैं प्रिंसिपल हूँ मिलेनियम स्कूल अमृतसर की, और बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि हमारा AI लैब जो है वो लॉन्च हो रहा है हमारे स्कूल में, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। AI जो है दुनिया में अब हर जगह है, इसके बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस दुनिया की। और बच्चों को सिखाना, क्योंकि ये एक भविष्य है हमारी एजुकेशन का, और NEP के साथ अलाइंड है, हमारे प्रधानमंत्री की विजन के साथ अलाइंड है कि AI जो है भारत में जो हमारी यूथ है इसको लीड करेंगे। और मिलेनियम स्कूल अमृतसर आई थिंक एक पहला ऐसा स्कूल है जो इतने बड़े वे में एक AI लैब को लॉन्च करने जा रहा है। एंड बहुत खुशी के साथ हम इस चीज़ को आज लॉन्च कर रहे हैं अपने नॉलेज पार्टनर्स EDAC के साथ। तो कितना उत्साह देखने को मिला बच्चों में? क्या आपने क्या बोला? इसमें कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे आई थिंक बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके, बिकॉज आई थिंक वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और अब इसको वो क्रिएट करेंगे एक नए तरीके से। एंड खाली कोडिंग और एल्गोरिथम्स नहीं होंगे इसमें बहुत कुछ उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा कि कैसे वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक सुनहरा भविष्य जो है इस दुनिया का वो निर्माण कर सकते हैं। आने वाले समय में कितनी जरूरत है इस चीज़ की? बहुत ज़्यादा। आप देखिए AI तो हर जगह पे है, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, लाइफस्टाइल में, हर जगह AI यूज़ हो रहा है। इसके बिना तो दुनिया की कल्पना भी नहीं करी जा सकती अब। सो AI जो है एक भविष्य है एजुकेशन का, एंड मिलेनियम स्कूल जो है हमेशा से फ्यूचरिस्टिक रहा है एजुकेशन को लेके, और इसीलिए इस AI लैब का हमने लॉन्च करा है।